file, modal verbs. Today we are going to learn about the modal verbs. Open the PDF file, girls, hurry up. Okay, so what are the modal verbs? Modal verbs show possibility, intent, yes. I'm the PDF file in it. Oh, I'm really sorry. Let me share it with you. I'm sorry. Give me 1 minute, please. Thank you for reminding me. Okay, now you can check in the final group. Thank you. Okay, so what are the modal verbs? Modal verbs show possibility, intent, ability or necessity. Actual में क्या होते हैं? Modal verbs are a type of auxiliary verb that expresses your modality, your mood, which means they convey the degrees of possibility, ability, permission, obligation or necessity. Okay, so in English, there are maybe the 9 modal verbs: can, could, may, might, shall, should, will. We'll discuss all the modal verbs day by day, inshallah. Okay. Is my voice clear on Zoom, girls? Okay. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को शो करवाते हैं, ठीक है, एबिलिटी को शो करवाते हैं. आपके इंटेंट मीन्स नीयत, नेसेसिटी किसी चीज की जरूरत को शो करवाते हैं, ठीक है. डिग्रीज ऑफ पॉसिबिलिटी की ये चीज कितनी पॉसिबल है, कितनी नहीं है, ठीक है. ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी वगैरह को शो करवाने के लिए. सो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स इंक्लूड can, should and must, because they are a type of auxiliary, mean के helping verbs. They are used alongside the infinitive form of the main verb of a sentence. Modal verbs are used in certain hypothetical situations, such as equality, capability, or request. They are used alongside the main verb to inflect the meanings. What it means actually, कि अगर आप अपनी एबिलिटी को, अपन किसी की कैपेबिलिटी को जाहिर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? किन वर्ब्स को यूज करते हैं? मॉडल वर्ब्स को, ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्पल्स. अब यहाँ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी कि मॉडल वर्ब्स की मैम जरूरत क्यों होती है, वाई वी यूज द मॉडल वर्ब्स, ठीक है, क्या मतलब है इसका, वाई वी यूज द मॉडल वर्ब. So here you can see the examples. I swim every Tuesday and I can swim every Tuesday. There are 2 examples. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? I swim every Tuesday मीन के ये मेरी आदत है, ये मैं काम करती हूँ, ठीक है. I swim every, मैं ये काम करती हूँ. I can swim every Tuesday, मैं ये कर सकती हूँ. Like I swim every Tuesday, मैं हर मंगल तैराकी करती हूँ. I can swim मीन के मैं कर सकती हूँ. I am able to do this, ठीक है, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं ये कर सकती हूँ. So I can swim. Like अगर मैं बोलूँ I can speak English, I can speak French, तो I can मतलब कि मैं ये काम कर सकती हूँ. अगर मैं अपनी कैपेबिलिटी, दूसरे पर्सन की एबिलिटीज को शो करना चाहती हूँ, तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं? कैन या कुड मॉडल वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है. तो डिफरेंट यूजेस होते हैं किसी की एबिलिटीज को शो करना, कैपेबिलिटीज को, परमिशन को, प्रोहिबिशन को, किसी चीज की पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए, ऑब्लिगेशन, किसी चीज की नेसेसिटी, जरूरत को शो करने के लिए मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं.
फ्यूचर प्लान्स और प्रेडिक्शंस के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि कैन मतलब कि ये काम कर सकती हूँ। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ सिंपल factual statement. The speaker participates in a swimming activity every week on Tuesday. And the second example uses the modal verb can. Notice how the meaning changes slightly. The speaker doesn't necessarily swim every Tuesday, but they are saying that they are capable of swimming every Tuesday. मतलब कि उसपे ability है कि वो ये काम कर सकता है, और that the possibility exists for them to swim every Tuesday. So it's hypothetical. ठीक है, एक कि आप सिर्फ एक सोच है आपकी कि आप ये कर सकते हैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर ऐसा करना हुआ तो आप ये काम कर सकते हैं. बिकॉज मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी, they can't generally be used on their own. A modal verb can appear alone in a sentence only if the main verb is implied because it has previously been established. So can you swim every Tuesday? Yes, I can. ठीक है, can you swim? अब can का मतलब क्या होता है? सकता या सकना. Can you swim? क्या आप तैर सकते हैं? Yes, I can. Okay. So now we are going to learn about the modal verbs can and could. तो यहाँ पर देख लेते हैं. Open the second PDF file, girls. Hurry up. Modals. There are two types of modals, you can say. Auxiliary verb and helping verb. इन दोनों को कवर करते हैं modals. Auxiliary and helping. Okay. Auxiliary verb and helping verbs are often used interchangeably, but there is a subtle difference between these two. कि auxiliary क्या होते हैं, helping verbs क्या होते हैं. Auxiliary verbs are verbs that are used to help from the sentence, from a tense, mood or voice of another verb. Okay? अगर किसी की grammatical situations को show करते हैं तो हम किस पर use करते हैं, auxiliary verbs. So like be, have, do. I already told you about the be verbs जिसमें हम EMR पर use करते हैं, was verb पर use करते हैं. And helping verb are the verb that used to help another verb expresses its meaning. जैसे हम verb मेन वो बोलते हैं फिर उसकी पास्ट फॉर्म को यूज कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपने मूड एक्सप्रेस करना होता है कि इस सेंटेंस में क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर देखें टेंसेस और ऑक्सिलरी दोनों आ रहे हैं. अब टेंसेस क्या होते हैं, जो हमारे पास टाइम को मेंशन करते हैं. वो ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस के टाइम को मेंशन करते हैं टेंसेस. इज एम आर वॉज वेर कि ये काम कब हुआ था, पास्ट में, प्रेजेंट में हो रहा है या इन फ्यूचर कोई प्लान है. तो उन सबको देखने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब को देखें तो ऑक्सिलरी में जो हेल्पिंग वर्ब लेके हैं वो मॉडल्स हैं, कैन, मे, शुड, वुड. तो ये सारे चीजें आ चुकी हैं. ठीक है, ऑक्सिलरी में जिससे हम मॉडल वर्ब्स को कवर करने वाले हैं. Please mute your mic on WhatsApp. Please. Okay, so modal verbs are a type of auxiliary verb which expresses the mood of another verb. मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब की टाइप होती है जो मूड को एक्सप्रेस करती है किसी और वर्ब के. दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन, डिडक्शन एंड नेसेसिटी. किसी चीज की पेशन गोई करने के लिए, किसी चीज की जरूरत या ख्यालात का इजहार करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, मॉडल वर्ब्स को, क्योंकि ये मूड को एक्सप्रेस करते हैं. दे आर यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी, अलाउ स्पीकर्स टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड एबिलिटी. इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि ये बोलने वाले, मतलब स्पीकर किसको बोलते हैं, बोलने वाले के मूड को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, किसी चीज का यकीनी होना बताने के लिए, किसी पर्सन की रजामंदी को शो करने के लिए, किसी को उसकी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन बताने के लिए, नेसेसिटी किसी को उसकी जरूरत बताने के लिए या अपनी जरूरत को एक्सप्रेस करने के लिए, एबिलिटीज किसी की सलाहियतों का इजहार करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं. ठीक है, मॉडल वर्ब्स अनसामी मॉडल्स इन इंग्लिश हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, कैन, कुड एंड बी एबल टू, मे एंड माइट, shall, should, must, have to, will and would. इंशाल्लाह डे बाय डे हम इनको कवर अप करेंगे. There are other less common modal verbs, some like shall and ought.
शेल एंड ऑट हमारे पास लेस कॉमन मॉडल वर्ब्स होते हैं, बहुत कम यूज होने में आते हैं ऑट, टू एंड शेल, लेकिन मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगी जरूर, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं can helping verb in English. The auxiliary verb can is used while these conditions are available. मॉडल वर्ब कैन को कब यूज करते हैं? जब हमारे पास ये वाली कंडीशंस होती हैं। कौन सी? सबसे पहले तो इसको यूज करते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है। एक चीज हो गई, प्रेजेंट में 99.9% चांसेस होते हैं कि हमें इसको प्रेजेंट की एबिलिटीज पर शो करने के लिए यूज करना है, ठीक है। एबिलिटीज हो सकती हैं, परमिशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये क्या है कि मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है, ठीक है। अपनी इस एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैं कैन को यूज कर रही हूँ, आई कैन स्पीक। सो इम्पोलाइट, लेकिन कैन का यूज इम्पोलाइट वे में करते हैं। इम्पोलाइट हमारे पास इनफॉर्मल वे होता है बात करने का, ठीक है। उसके बाद हम लाइक के इम्पोलाइट आप इस वे में कह सकते हैं, वैसे तो इसका लफ्जी मतलब होता है नामुनासिब तरीका, लेकिन इम्पोलाइट ये थोड़ा सा जैसे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल का अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होता है कि फॉर्मल आप कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, अपनी कोलीग्स के साथ बैठे, तो ऐसे ही जैसे हम थोड़ी सी चिट चैट कर ली उनके साथ या गॉसिप्स कर लिए, तो वो हमारा एक वे होता है बात करने का, ठीक है। जैसे नेटिव स्पीकर्स आपस में कर लेते हैं, लेकिन पोलाइट में या अपनी टोन को आपने पोलाइट रखना, ये सारी चीजें ये फॉर्मल पे आ जाती हैं कि अदब के लहजे में किसी से बात करना, ठीक है, अदब में रहते हुए। तो कैन को थोड़ा नामुनासिब समझा जाता है कि आप अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने बॉस से, अपने मैनेजर से इस पे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप अपने मैनेजर को भी तो नहीं कह सकते यू कैन गो नाउ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इस तरह इसको नामुनासिब कहा गया। अच्छा, शो टू बी एबल टू डू, करने के काबिल दिखाना, मतलब कि किसी पर्सन की एबल का क्या मतलब होता है? काबिल, ठीक है। तो कोई पर्सन कोई काम करने के काबिल है, उसकी एबिलिटी को शो करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? कैन को शो करते हैं। अगर उन्होंने कहा है उर्दू में देखें तो एबिलिटी, काबिलियत दिखाने के लिए किसी पर्सन की, ठीक है। अथॉरिटी, किसी का हक जाहिर करने के लिए कि ये पर्सन इस चीज के लिए ऑथोराइज है या नहीं है, अथॉरिटी, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स किसी की सलाहियत दिखाना। अमकान, पॉसिबिलिटी जाहिर करने के लिए, अमकान बताने के लिए। उसके बाद है हमारे पास परमिशन, इजाजत लेने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब प्रेजेंट में इसका यूज अगर देखें तो वो कैसे है? यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। अब प्रेजेंट में मैं इसका यूज कर रही हूँ, यू कैन डू इट, तो हम ये कर सकते हो, ठीक है। या यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये लाउंस नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें, गिव मी 1 मिनट। Okay, girls, be attentive. I'm back. ओके, प्रेजेंट के हम बता रहे हैं एबिलिटी को, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, इतनी एबिलिटी है तुम में, ठीक है। अगर आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या है? सब्जेक्ट, कैन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ओके। अब एबिलिटी सलाहियत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई काम, पर्सन कोई काम करने के काबिल है तो आई कैन ड्राइव अ कार। किसी की कोई भी एबिलिटी को अगर आपने एक्सप्रेस करना है तो आप क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे, ठीक है। लाइक आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकती हूँ। एंड वो ये सवाल हल कर सकता है, ही कैन सॉल्व दिस सम। अथॉरिटी,
अथॉरिटी किसी की सलाहियत बताने के लिए, ठीक है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। कि मतलब मेरे पास इतनी सलाहियत है या इतना मैं ऑथराइज हूँ, मेरे पास इतनी थोड़ी अथॉरिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे घरों के कुछ बड़े होते हैं, जैसे हमारे ताया हो गए तो सब कुछ उनके हैंड ओवर होता है। तो इस तरह जो घर का बड़ा होता है ना, जैसे हमारे ग्रैंडपा हो गए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन कि वो हमारे घर का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे पापा फैसला ले सकते हैं, माई फादर कैन टेक डिसीजन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी वही सलाहियत, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, या कैन यू लिफ्ट दैट सैक ऑफ फ्लोर, ठीक है। आप इस तरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्या तुम इस आटे की पूरी को उठा सकते हो। तो इस तरह करके कुछ भी आप किसी की कैपेसिटी को अगर दिखना चाहे, मैं उसे हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट हिम, आई कैन डिफीट हिम। नेक्स्ट है हमारे पास परमिशन। परमिशन इजाजत के लिए भी कैन को यूज किया जाता है। जैसे जब हम इजाजत अपने हम उम्र दोस्तों से मांगते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन, ये वही चीज आ गई जैसे मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या इनफॉर्मली टॉप आप किसी से कुछ मांगते हैं, तो वो यहीं पर ये बता रहे हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए आप कैन को यूज करते हैं। लाइक तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर बाईसाइकिल, कैन आई बोरो योर बाईसाइकिल। और क्या मैं आपका खुश कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर पेन। तो आप क्या करें कि इनफॉर्मल परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या मैं आपकी ये चीज यूज कर सकता हूँ, और कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर लैपटॉप, समथिंग एल्स व्हाटएवर यू वांट टू से। तो आप कुछ भी परमिशन देंगे तो आप कैन को यूज करेंगे इनफॉर्मल वे में। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी लाइक क्या ये सच हो सकता है, कैन दिस बी ट्रू, और वो आ सकता है, ही कैन कम। सेम वही चीज है कि जब आपने इंट्रोगेटिव में लेके जाना है सेंटेंस को, तो हमारे पास जो भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग होता है वो स्टार्टिंग पे आ जाता है, और रिमेनिंग सेंटेंस एडजेक्टिव रहता है कि कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो आ सकता है, तो ये वैसे ही एक लाइन है, सेंटेंस है, ही कैन कम। इज दैट क्लियर गर्ल्स? Any question related to can? Donna. Okay, that's great. No confusion? Okay, very good. Next है हमारे पास could. Could is a past form of can. Like present के लिए आप यूज करते हैं ना, जैसे मैंने कहा I can speak English, तो मैंने past की अपनी कोई ability बतानी है तो मैं बोलूंगी I could speak English when I was a child. ठीक है, I could speak English when I was a child. मैं इंग्लिश बोल सकती थी जब मैं छोटी थी। तो you could do it, तुम ये कर सकते थे, तुम ये कर सकते हो, you can do it, और तुम ये कर सकते थे। पास्ट की एबिलिटी बतानी है तो you could do it. The auxiliary verb could is used while these conditions are available. आप कब यूज करते हैं, जब आपके पास ये वाली कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो पास्ट की बात करनी है, ठीक है, पास्ट भी, और दूसरा इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है कि पास्ट और प्रेजेंट ये दोनों में कुड का यूज हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। सेकेंड वन है हमारे पास पोलाइटनेस, अदब के लिए, फॉर्मल वे में बात करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। और लेस एबल टू देन कैन, इसकी एबिलिटी जो है कैन से कम होती। क्यों? क्योंकि अब देखें, अगर मैं बोलूं, अब जैसे मैंने बोला यू कुड डू दैट, तुम वो कर सकते थे, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन लेस एबल क्यों है, एबिलिटी कम क्यों हो गई? क्योंकि पास्ट की बात करें कि आप वो कर सकते थे, अब आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास चांस नहीं आ सकता दोबारा, अब टाइम गुजर चुका है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये लेस एबल है देन कैन, ठीक है। अब यूज ऑफ कुड, कुड का अगर यूज देखें तो प्रेजेंट, अच्छा पास्ट की एबिलिटी के लिए, लाइक वुड यू स्विम व्हेन यू वर यंग, क्या आप जवानी में तैर सकते थे? वुड यू स्विम
When you were young, मैं तेज भाग सकता था. I could run fast. I could run fast. मैं तेज भाग सकता था. Permission. अब देखें, permission फॉर्मल और पोलाइट वे में मैंने कहा कि कुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है. अब देखिए प्रेजेंट में कैसे यूज होता है. क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूं, लेकिन ये कैसे पूछना चाह रहा है, इन अ पोलाइट वे. ठीक है, लाइक कुड आई राइड योर बाइक. कुड आई राइड योर बाइक. क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूं, क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूं. कुड आई टेक योर लैपटॉप. तो ये कोई इनफॉर्मल वे नहीं है, ये है फॉर्मल वे प्रेजेंट में बात करने का. ठीक है, परमिशन लेने के लिए पोलाइट वे में बात करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, कुड का. ठीक है, कुड आई टेक योर लैपटॉप, कुड आई यूज योर मोबाइल. तो इस तरह से ये प्रेजेंट में भी यूज होता है. अगर रिक्वेस्ट, देखिए पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे, क्या आप नमक इधर दे सकते हैं, कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास मी द सॉल्ट. या क्या आप मेरे साथ सफर कर सकते हैं, कुड यू ट्रैवल विद मी. तो ये रिक्वेस्ट के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशंस के लिए, फॉर्मल परमिशंस के लिए आप किनको यूज करते हैं, कुड का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं. ठीक है, कुड यू ट्रैवल विद मी और कुड यू पास मी द सॉल्ट. नेक्स्ट अगर आप देखें तो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, अमकान जाहिर करने के लिए, जैसे वो ट्रैफिक में जिंदा बच सकता था. He could survive in the traffic. He could survive in the traffic. ये आपको काफी तकलीफ दे सकता था. It could hurt you a lot. आपको काफी तकलीफ दे सकता था. अब हमने देख लिया कि पॉसिबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि अगर बात परमिशन या रिक्वेस्ट की है तो हम इसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं. अदरवाइज एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज की बात करनी है तो वो हमारी पास्ट में जाएंगी. ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें अबाउट द कैन और कुड, तो क्या है जी, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस योर एबिलिटीज, योर स्किल्स इन प्रेजेंट. ओके, लाइक आई कैन प्ले द गिटार. ठीक है, आई कैन टीच द स्टूडेंट्स. और ये सारी चीजें हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं प्रेजेंट की परमिशंस और पॉसिबिलिटीज के लिए. लाइक यू कैन गो टू द पार्क इफ यू वांट. ठीक है, और जनरल ट्रूथ और फैक्ट के लिए हम कैन का यूज करते हैं बट इन प्रेजेंट. और कुड इज यूज टू एक्सप्रेस द एबिलिटीज और स्किल्स इन द पास्ट. ठीक है, आई कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. तो पास्ट के कोई चीज बतानी है, लाइक कोई पॉसिबिलिटी, कोई अनसर्टेनिटी बतानी है पास्ट की, तो आप बोलेंगे इट कुड रेन टुमारो, या आने वाले लाइक फ्यूचर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर अनसर्टेनिटी बतानी है, इट कुड रेन टुमारो सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला. ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, सजेशंस लानी है तो कुड यू प्लीज पास मी द बुक. ठीक है, पोलाइट वे में बात करेंगे लेकिन प्रेजेंट में करेंगे तो क्या यूज करेंगे, कुड का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट कैन इज इनफॉर्मल वे. ठीक है, कुड इज मोर पोलाइट. आप इसको कहां पर यूज करेंगे, अपनी एबिलिटीज बताने के लिए, पॉसिबिलिटीज बताने के लिए. अब आपको पता चल गया होगा कि हम मीन के ये चीज मॉरल वर्ब्स, आपकी एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी कर दिया कि कैन और कुड का हम यूज करते हैं, या मॉडल वर्ब्स क्या होते क्या एक्चुअल में. लाइक हमारे ये सेंटेंसेस से हट के होते हैं ना, वो आता है, वो जाता है, जाएगा, उन सबसे ये हट के होते हैं कि वो ऐसा कर सकता है, ऐसा मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, हो सकता है, क्या वो जाएगा, क्या वो नहीं जाएगा. तो ये सारी चीजें हम किस में यूज करते हैं, मॉडल वर्ब्स में यूज करते हैं. किसी को कोई चीज रिकमेंड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, सजेशंस देने के लिए. ठीक है, जैसे हम कहते हैं तुम्हें ये काम करना चाहिए या तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए, तो यू शुड हम यूज करते हैं, यू मस्ट यूज करते हैं. तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं. फ्यूचर प्लान करने के लिए, प्रिडिक्शंस लगाने के लिए, पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस को बुलाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम किसको यूज करते हैं, मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं. इज दैट क्लियर गर्ल्स? ओके, वेरी गुड. यस यस. मैम आपसे एक पूछना था, कल हमारे टेस्ट का प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मैम सारा टेस्ट आता था, बट मुझे वो सेंड नहीं करना आ रहा था कि मैंने उसको कैसे वो मतलब सबमिट करवाना है. फिर तो मैंने कर लिया था अपनी फाइल में जाके,
उसको मैंने टिक भी कर दिया था ऑप्शन 1 A एंड B C, लेकिन वो मुझे ना परफेक्ट नहीं करना